હવે બાકી સવાલના નામ ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी, जागरूक आध्यात्मिक वैज्ञानिक, आनापानसती ध्यानના નિષ્ણાત વિભા તેઓને તેમના સ્થાને પહોંચાડ્યા. હવે હું વિભાને આપું છું જેઓ બીજા ગુરુનો ये ध्यान का दरबार है और हम इस दरबार में महफिल में आए हुए हैं. हम सब ध्यान योगी हैं. वी आर ऑल मेडिटेटर्स, वी आर ऑल योगीस, वी आर ऑल ध्यान योगीस. And on this August day of August 15th, then on this Independence Day, it behoves such wonderful blessings. It indicates great future for all of us. We, the spiritual scientists, we have to learn from everybody. That's a spiritual scientist. One disciple is devoted to one guru. That is guru-chela relationship. But a scientist learns from every guru and every chela. That's a scientist. So we are all here as spiritual scientists, and I am a spiritual scientist. I have started this movement about 30 years back, and I have been learning from each and every person, each and every human being, and each and every animal. Every animal is our guru. Every being is our guru. When we say Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, every being is our guru. We learn from every person. There is nothing like ordinary person. Every person has got some beautiful characters, some beautiful things. If only you can observe them and draw from them, you will gather so much wisdom. That's a spiritual scientist. A spiritual scientist learns from every being. No one guru is less than the other guru. No one chela is less than the other chela. And no one chela is less than the other guru. So these are the equations of spiritual science, my dear friends. Swamiji, we are very honored that you have chosen to come here. स्वामी जी, हम तो नतमस्तक हो गए हैं आपको देखकर. हम ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मैं ओशो रजनीश से साहब हूँ. उनको तो मैं देख नहीं पाया. 2 दफा मैं तो ट्राई किया हूँ, परंतु देख नहीं पाया. मेरा भाग्य में नहीं लिखा था. परंतु सारे ओशो संन्यासियों को मैं देखता हूं तो मुझे ओशो ही दिखते होते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, एनलाइटनमेंट यानी जागृति एक ही कहती है कि हमें निरामय, निर्मल, शून्य, आकाश जैसे, अंबर जैसे बने सदा के लिए. सरगुण निर्गुण बन जावे, दूध दही बन जावे. बस कैसे बन जावे? सांसों के साथ रहे. बस उतना ही बात है. Everybody
should become a white paper, जहां कोई लिखन नहीं, where there are no judgments. आप ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, where there are no complaints, where there are no nothing to be achieved. आप जैसे हैं वैसे भगवान है। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कही है, योगी भवार्जुन, हे अर्जुन आप योगी बनिए, तपस्वी बिहोदिको योगी ज्ञानी बिहोपि मतोदिकः कर्मयज्ञश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। Therefore Arjuna, be a yogi. And who is a yogi? What is yoga? Yoga chitta vritti nirodha. Making the mind empty is yoga. If you have made your mind empty, you are a yogi. And Krishna is a Yogishwara, king among the people who have their minds empty. Yogeshwara. So, that is the only message of any Yogeshwara, either it is Adi Shankaracharya or Vedavyasa or Valmiki, anybody. Make your mind empty. Remove all judgments, complaints. आप कौन होते हैं दूसरों को जज करने वाले? आप क्या जानते हैं भला? People have judged, Romans have judged Jesus Christ and they have crucifixed him. That is how judgment ends. It ends in the crucifixion of masters. Who are you to judge? Socrates was given poison. That is how the master of Athens judged him. He is anti-establishment. All enlightened people are anti-establishment. And they will be always crucifixed. As Osho was crucifixed, he was given arsenic. So that, because Osho is not wanted on this earth. He is a very dangerous species. He must be killed. But can Osho be killed? No way. Give a big clap to Osho. He is living in our hearts. My dear friends, truth can never be killed, but untruth can be killed. How can untruth be killed? Untruth can be killed only through meditation. Anyadha saranam nasti. Where is untruth? Only in your mind. Not in the Prakriti. The trees, the water, the mountains, the animals, the human beings, the birds, the fish, they are not untruth, they are truth. Untruth is there only in the mind. When you judge others, when you have complaints, जब शिकायतें करते हैं ना, वही असच्चाई अथवा बदमाशी अथवा बेवकूफी अथवा मूर्खता, मूर्खमति। आदि शंकराचार्य जी का जिक्र किया गया है, कहें हे मूर्खमति भज गोविंदम। मूढ़मति, गोविंदम का अर्थ है आत्मा, भज यानी बिकम वन विद द आत्मा, भज गोविंदम। तो जोरदार से तालियां बजाएंगे, क्योंकि बार बार हमें समझना ही चाहिए, बार बार हमें सुनना ही चाहिए जागृत व्यक्तियों से कि क्या है भला सच। हम हर रोज सुबह कॉफी पीते हैं, तो हर रोज जागृति भी पीना है, जो जागृत व्यक्ति है। दिस इज कॉल्ड एज सज्जन सांगत्य। एवरी डे वी हैव टू स्पेंड टाइम विद ग्रेट मास्टर्स थ्रू देयर बुक्स, थ्रू देयर सीडीज। एंड अगर मुखामुखी हो जाए, पर्सनल मिल सकते हैं, तो आज के इससे ज्यादा हम क्या चाहते हैं? हम स्वामी जी से अनुरोध करते हैं कि
और एक बार हमारे दिल भर जाए, आत्मा संपूर्ण हो जाए, ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे जोर से कहेंगे ओशो, ओशो, ओशो। थैंक यू वेरी मच स्वामी जी। ये शाकाहार मांसाहार का मामला बिल्कुल गंभीर है, हमें ध्यान नहीं करना पड़ता स्वामी जी, नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे। उस मामले के बारे में एक बात मैं भी कहूं, रामायण जी में हम पाते हैं रावण को, वो तो महान ध्यानी थे, वो भगवान शंकर को ही हिलाते थे। तो फिर उनको क्यों मारा गया? वो राक्षस क्यों है? महान योगी है, 3 आंखें वाला है, सारा लोग अनेक डायमेंशंस के ऊपर कब्जा कर बैठा है, परंतु उसको क्यों मारना था फिर? क्योंकि वो मांसाहारी और हिंसात्मक, सबको बर्बाद करने वाला। ऐसा क्यों निकला? एज यू ईट सो यू बिकम। सी, सो ही हैड टू बी किल्ड। ऑल asuras, see, they were all great meditators, but they had to be killed because although they were dhyan yogis, they were also himsatmak, and हिंसा चलता नहीं गए। अहिंसा परमो धर्मः। खासकर आज अगस्त 15 है, हम बापूजी का जोरदार हम तालियां बजाएंगे। हमारे गुजरात के हैं, हमारे भारत के हैं, हमारे धरती के, हमारी सृष्टि के हैं। अहिंसा के द्वारा ही हम स्वतंत्रता पाए हैं। हम बापूजी के सामने नतमस्तक हैं। श्री राम ने अहिंसा को अपनाया, परंतु श्री रावण सभी लोग भगवान हैं, कौन भगवान नहीं? तो हिंसा को अपनाए, तो इसीलिए उनका रहना अच्छा नहीं है धरती के ऊपर। अंबर में चले जाए, जहां से आए वहां चले जाए, और ट्रेनिंग ले, फिर वापस आए। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं यह संसार बहुदूतारे कृपया पर पाहि मुरारे। अरे बार बार जन्म लेना ही पड़ता, जब तक आप कौरव जैसे भी हैं और जब तक आप पांडव के जैसे भी हैं, आपको जन्म लेना ही पड़ता। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहिए, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति, किसी विषय के प्रति हर्ष प्रकट नहीं करता। न द्वेष्टि, किसी के प्रति द्वेष नहीं। न शोचति, किसी कारण रोता ही नहीं। न कांक्षति, कुछ भी नहीं चाहता है। शुभ अशुभ परित्यागी, अशुभ को भी त्याग किया है, शुभ को भी त्याग किया है। भक्तिमान्य, अपने आप में विराजमान है। स मे प्रियः, ऐसा व्यक्ति मुझे अति प्रियतम है। आज मैं आपको एक इक्वेशन देने वाला हूं। 100-5-1, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट है। बोलिए क्या बात है? बात 100-5-1। हम अनेक जन्म लेते हैं। समझो पहला 100 जन्म कौरव के जैसे जीते हैं। नेगेटिविटी, हिंसा, सबको बर्बाद करें, अपना
खजाना भरे। हम हिंसात्मक होते हैं कौरव के जैसे, फिर जितना हिंसा करते हैं उतना पाप भोगने के लिए फिर हम 5 जन्म लेते हैं पांडव के जैसे। हिंसा अभी नहीं करते परंतु वे अरण्यवास करते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों में किए हुए पापों का परिहार इस जन्मों में हो रहा है। पूर्व जन्म कृतम पापम व्याज रूपेण पीड्यते। हम 100 जन्म कौरव के जैसे जिए हैं, फिर उसके बाद 5 जन्म हमें पांडव के जैसे जीना है। दिस इज द लॉ ऑफ ह्यूमन लाइफ। पहला अशुभ सोचता है, नेगेटिव सोचता है, करता है, सोचता है, करता है 100 जन्म, फिर बाद में जितना पाप इकट्ठा किया है 100 जन्मों में, न जाने कितने जानवर को काटा खाया, जितने सास बनकर बहू को कितना कष्ट दिया है, गुरु होकर चेला को भी कितना कष्ट दिया है, चेला बनकर गुरु को भी कितना कष्ट दिया है। ये सब होते हैं। तो 5 जन्मों में यू हैव टू पे बैक। कर्म सिद्धांत, वॉट एवर यू हैव डन पाप इन 100 जन्मास, you will pay back in 5 जन्मास। Then 100 भी हो गए, 5 भी हो गए, ये कृष्ण के जैसे, ओशो के जैसे, देखिए बुद्ध के जैसे। That is enlightenment. In the final lifetime you come to meditation. पांडव के जन्मों में आप समाज का सेवा करते हैं, खूब इतना सेवा करते हैं, जैसे मदर टेरेसा, कोई भी हो, हम सेवा करते करते हैं, परंतु सेवा करने के बाद वी क्लियर आवर नेगेटिव कर्मा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मण, सो देन सेवा ज्ञान, सर्विस ज्ञान, अहिंसा ज्ञान। कौन सा ज्ञान में कर्म दग्ध होते हैं? अहिंसा ज्ञान, सेवा ज्ञान, दूसरों का सेवा करें, तो फिर अंतिम जन्म में हम ध्यान में आ जाते हैं, योगी बन जाते हैं। जब सारे कर्म छूट गए हैं, 100 जन्मों का कर्म, 5 अशुभ कर्म, 5 जन्मों में शुभ कर्म का वो हिसाब किताब ठीक हो गया, तो एक ही जन्म में सब अपने आप को परमात्मा देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द इक्वेशन फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। 100 प्लस 5 प्लस 1, 106 जन्म मिनिमम। अगर ज्यादा बेवकूफ हो तो वो 100 नहीं, वो 500 हो जाते हैं या 5000 हो जाते हैं, तो फिर ज्यादा ही जन्म, ये 5 भी 10 हो जाते हैं या 20 हो जाते हैं। और परंतु अंतिम जन्म तो एक ही है, जब कर्म से छुटकारा पाते हैं। क्या रखा है? कोरा कागज तो बन गए, बस सांस के साथ रहियो, जट मांगनी पट शादी, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, आप अपने सारे जन्म देख लेंगे। मैं मेरे सारे पिछले जन्म देख लिया। मेरे पिछले जन्म में माय नेम वाज हजरत इनायत खान। आई रोट मेनी बुक्स, आई वाज अ सूफी मास्टर, आई वेंट टू पेरिस। I know all my lifetimes. 2500 years back, I was with Gautama Buddha. He died on my lap. I was with him for 40 years. So, my dear friends, we know all our lifetimes because कोलाकागस, कोई अशुभ कर्म किए हैं हम सब, परंतु अशुभ कर्म करने के बाद इट्स अवर फ्री विल। जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, करने के लिए तो धरती है। हम गलतियां करते हैं, फिर अपने आप को सुधार लेते हैं। हम कौरव के जैसे बनते हैं 100 जन्म में, फिर 5 जन्म में अपने आप को हम स्वयं अपनी ही इच्छा से सुधार लेते हैं। हाँ समझते हैं, हाँ मांस भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, किसी को भी जला सकते हैं, हत्या कर सकते हैं, क्या है? कौन देखा है आगे क्या है खेल? कौन देखा है? बस हिंसात्मक होते हैं, गांधी जी को मार देते हैं। ये अच्छा आदमी नहीं है भारत देश के लिए, ओशो अच्छा आदमी नहीं है सृष्टि के लिए, मार देते हैं। क्यों नहीं मार देते हैं? परंतु अंजाम अवश्य भोगेंगे और प्रीति से भोगेंगे। 100 जन्मों में जो हम किए हैं, फिर 5 जन्म लेते हैं, मांस का हो, जो भी, फिर बाद में लेना ही पड़ता आपको जन्म।
जीसस गए हैं तो ऊपर से फिर आए नहीं क्या अपने आप को सुधारने के लिए? बिल्कुल आए हैं। रामकृष्ण परमहंस आए नहीं क्या? मैं वो स्टोरी जानता हूं। मैं बिकॉज आई एम ए थर्ड आई मास्टर। मैं जानता हूं रामकृष्ण परमहंस अब धरती में कहां है, श्री अरविंदो अब धरती में कहां है। मैं सब जानता हूं। कैसे जानता हूं? अगर गणित शास्त्रज्ञ हो तो ही गणित जानू, अगर तीसरी अंक का साइंटिस्ट हो तभी तो मैं ये सब जान, नहीं तो मैं नहीं जान सकता। इम्पॉसिबल। Any person who does meditation sincerely and seriously will of course awaken his third eye. उसमें कोई बड़ापन नहीं। तीसरी क्लास में जो रहता है बच्चा, उसके लिए वो वही सही, और 10वीं क्लास में रहता है वो उसके लिए, और आइंस्टीन के लिए वही सही। हम तरह तरह की स्थितियां में स्तरों में रहते हैं। इतना कहते हुए माय डियर फ्रेंड्स, एक ही बात है, मैं ओशो पूरा पढ़ा, मैं सब कुछ किया मैं, तो ओशो में से 108 से मैं एक ही को अपनाया, आनापानसति, उसी को दुनिया भर देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं 108 नहीं जानू, परंतु एक तो जानू। 30 साल हो गए मेरे। In the year 1979, I completed my meditation and I saw all my lifetimes. एक ही झटके में। तब से मैं सतत ध्यान मग्न होते हुए सभी को ध्यान विद्या सिखाते हुए एक बात, आनापानसति। जुओ जुओ श्वास जुओ, अवतो जतो श्वास जुओ, बस वही मैं जानता हूं। एक चीज को मैं पकड़ लिया, 108 में से एक ही को पकड़ लिया, और मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया मैं। मेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है स्वामी जी। आप भी अपना धंधा शुरू करते हैं। खासकर आंध्र प्रदेश में मेरा धंधा ऐसा चल रहा है। हम आप सबको आमंत्रित करते हैं, आपको स्वागत करते हैं। दिसंबर 21 से लेकर दिसंबर 31 तक आंध्र प्रदेश के गुंटूर के पास अमरावती जो है, वहाँ 1 लाख लोगों के साथ ध्यान शिविर हो रहा है। आप जरूर आइएगा, 11 दिन के लिए।